morning to all. I am Rupinder Kaur, Department of Hotel Management, RPIIT Campus, Karnal. Today my topic is safety rules at housekeeping areas. Potentially hazard conditions. Accident and injuries do not have to occur. By following three simple rules, employees can contribute to a safe accident or free in work environment. Number 1, take adequate time. Number 2, correct unsafe conditions immediately. And number 3, do it safely the first time. Lifting. Housekeeping tasks often involve lifting heavy objects. Employees may also be required to move furniture in order to complete a thorough cleaning task. Number 2, incorrectly lifting heavy objects such as the bag, boxes, and containers may result in strained or pulled muscles and back injury. In turn, these injuries can result in loss of work and long term pain and suffering. Number 3, employees can also incur cuts and scratches when lifting items such as trash or dirty linen, which contain pointy objects or broken glasses. In all instances, employees should know what condition to look for and special precautions to take. In these paragraphs and last slide I had discussed कि जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पर जब जो भी हमने लास्ट एक वीडियो में शेयर किया था कि सेफ्टी एरियाज़, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, तो उसमें हमने लास्ट किया था बॉम्ब थ्रेट के रिगार्डिंग। और अब हम बात कर रहे हैं कि जब एम्प्लॉय होटल में काम करते हैं तो उस दौरान उसे कई चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती है, इंजरीज़ हो जाती है, एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि कोई भी सामान उठाना है, लिफ्टिंग, कोई भी सामान एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में लेके जाना है या रूम के अंदर शिफ्ट करना है, तो उस दौरान एम्प्लॉयज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें प्रॉपर एक तरीके से उठाएं, जो उनका राइट प्रोसीजर है उसी तरीके से उसे उठाएं, और क्लीनिंग जो टास्क हैं उसे भी प्रॉपरली वो करें। ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि जब वो भारी सामान को गलत तरीके से पुश करते हैं या लिफ्ट करते हैं तो उस दौरान उनकी बॉडी में कई बार मसल्स पेन हो जाते हैं, बैक इंजरी हो जाती है। तो ये बहुत बेसिक सी इंजरीज़ हैं जो होटल में एम्प्लॉयज़ को हो जाती हैं ड्यू टू लॉस ऑफ या लैक ऑफ नॉलेज। इसीलिए हमें जब भी हमने कोई सामान उठाना है तो हमें प्रॉपर उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हमने कैसे इस ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करना है, चाहे वो बॉक्सेस हैं, बैग्स हैं, कंटेनर्स हैं या कोई फर्नीचर से हैवी आइटम है। तो कई बार इस दौरान एम्प्लॉयज़ को इंजरीज़ हो जाती हैं, जैसे कि ग्लासेस हैं, ब्रोकन ग्लास हैं, वो लग गया हाथ पर। सम गाइडलाइंस फॉर द सेफ मूविंग एंड लिफ्टिंग. Inspect and object before lifting. Do not lift any item that you cannot get your arm around or that you cannot see over when carrying. Get help if it is too heavy. हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमने कोई सामान उठाना है उसे हम प्रॉपर उठा सके। अगर हम नहीं उठा सकते तो हमें अपने आसपास किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए। Number 2, when lifting, place one foot near an object and the other slightly back and apart. Keep well balanced. Number 3, keep the back and head of your body straight because the back muscles are generally weaker than the leg muscles. Do not use the back muscle to lift the objects. कि हमें कभी भी अपने बैक मसल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए उठाने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट्स। Number 3, bend slightly at the knees and hips but do not stoop. कि हमें जब भी कोई सामान हमने उठाना है तो उसे थोड़ा सा अपने नीज़ को मोड़कर बैंड होकर फिर हमें उठाना चाहिए। स्ट्रेट पोजीशन में हमें कभी नहीं उठाना चाहिए, वरना उससे हमारी बैक इंजरी हो जाएगी, हमें कोई बैकबोन प्रॉब्लम हो जाती है। यूज़ बोथ हैंड एंड grabs the object using the entire hand. Next, lift with the leg muscles. Next, keep the object close to the body. Avoid twisting your body when setting an object down. Do not use your back muscles. Next, use the leg muscles and follow the procedure used to the lift object. Next, when tucking in sheet, picking up a laundry or cleaning a tub, bend with the knee and not to the back or not to the waist.
टू प्रिवेंट बैक इंजरी, कि जब भी हमने कभी बेड मेकिंग करते हैं या हम लॉन्ड्री में सामान पिक करते हैं, लॉन्ड्री पिक करते हैं, तो हम कभी भी हमें कमर को नहीं झुकाना चाहिए, हमें बैक को नहीं झुकाना चाहिए, बल्कि अपने नीज़ को थोड़ा बेंड कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी बैक की जो प्रॉब्लम है, बैक मसल्स में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई इंजरी ना आ जाए आपकी। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी हैं। यूज़ योर बॉडी weight in pushing and pulling the vacuum, not just your arms and shoulder. To avoid slipping and tripping, hold the cord and coil as you go. Wear the right shoes. Working shoes should be slip resistant with a closed toe and fit to give your best comfort. Next, use door stoppers and not lines or object that could cause a slip or fall. Next, turn on lights and look all sides before entering any room. There may be spills or broken glasses on the floor that need to be cleared. कि जब भी हम किसी रूम में, रूम अटेंडेंट जब भी किसी रूम में जाता है तो उसे सबसे पहले वहाँ जो डोर है उसे पुश करके ही खोलना चाहिए, ठीक है। और प्लस उसे जो शू है उसके जो ड्यूटी आवर्स में प्रॉपर ऑक्सफोर्ड शूज़ वही कैरी करने चाहिए, क्योंकि आपके शूज़ स्लिपरी नहीं होने चाहिए, आपके जो कंफर्टेबल हों आपको शूज़। और जब भी आप रूम के अंदर एंटर करें आप डोर स्टॉपर लगाएं और कोई भी ऐसी आइटम दरवाजे के आगे ना रखें जिससे कि वो स्लिप हो जाए या आप गिर जाओ। नेक्स्ट, कि जब भी आप रूम के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप लाइट ऑन करेंगे। लाइट ऑन करने के दौरान, क्योंकि कुछ भी रूम में हो सकता है, कोई ग्लासेस वगैरह के हो सकते हैं, ब्रोकन ग्लासेस हो सकते हैं, ठीक, या कोई रूम में पानी हो सकता है, तो इसलिए हमें पहले रूम को चेक करना चाहिए कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट्स ना हो। If a broken glass is found, sweep the floor and place the glass in a container separate from the trash. Put the room attendant's cart easily. Check if it has tricking wheels. Without it, it will be harder to push and could injure the user. Remove sticking thread on the wheels. Be careful with loose screw of sharp edges as they could catch on one clothing and the cause cuts. Next, in case a cart fall down, do not try to stop or stand it up by alone. It is heavier than you think and can cause accident. Ask for the help. कि अगर आपको रूम में कहीं पे भी ब्रोकन ग्लासेस मिलते हैं देन यू शुड हैव टू स्वीप द फ्लोर, और ग्लासेस को हमने कंटेनर में अलग से डाल देना है, ट्रैश वाले में। नेक्स्ट, जब भी आप कोई अपनी कार्ट को चलाते हैं, पुश करते हैं, तो आपकी जो उसके व्हील्स हैं वो प्रॉपर लॉक होने चाहिए। लॉक वाली आपकी कार्ट होती है तो उसके लॉक प्रॉपर काम करने चाहिए, उसके व्हील्स के अंदर कोई भी थ्रेड वगैरह ना हो जो उसे चलने में दिक्कत करे। इन अ केस ऑफ कार्ट फॉल डाउन, अगर आपकी कार्ट गिर जाती है, अब मेड कार्ट अगर आपकी गिर जाती है, उसका कोई सामान आपका गिर जाता है, तो अगर आपको लगता है कि आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हैवी होती है, तो आप किसी और अटेंडेंट की हेल्प ले सकते हैं। अपने आप कोशिश ना करें उसे उठाने की, क्योंकि फिर आपको कोई और इंजरी भी हो सकती है। डू नॉट ओवरलोड लॉन्ड्री कार्ट टू मेक इट ईजियर टू पुल, और कभी भी आपको अपनी मेड कार्ट ओवरलोड नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो फिर आसानी से चल नहीं पाएगी। वैन रीचिंग फॉर समथिंग स्पेशली इन द टब, नेवर स्टैंड ऑन द एजेस ऑफ द टॉयलेट बाउल, यू मस्ट लॉस योर बैलेंस एंड फॉल। और जब भी आप कभी बाथटब वगैरह की बाथरूम की क्लीनिंग करते हैं तो बाथटब या WC के एजिस के ऊपर कभी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उससे आप गिर सकते हो और आपको कोई इंजरी हो सकती है। तो हमें ये सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम रूम के अंदर क्लीनिंग करते हैं, कोई भी सामान लिफ्ट करते हैं। Thank you. Please like and subscribe our channel.